ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن عبد الله بن عباس وجابر رضي الله عنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگت قصہ مختصر. محترم و معزز سامعین کرام اور میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے گھر مسجد میں ہیں، آپ ادب احترام کے ساتھ بیٹھیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے گھر میں ہیں رہ کر دنیاوی باتیں نہ کریں. تمام بچوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آپ ادب و احترام کے ساتھ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں اور صفوں کو پر کرنے میں ترتیب کا لحاظ رکھیں. سب سے پہلے سب کو پر کریں، اس کے بعد دوسرے سب کو پر کریں. معزز سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہے اور جس حدیث کو پڑھا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا ترجمہ کرتا چلوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی مذکورہ آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک صاف کرتا ہے، ان کے دلوں کی تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. بہقی کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی، جس سال واقع عام الفیل پیش آیا. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک شعر پڑھا ہے. شاعر نبی اکرم شفیع اعظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یوں گویا ہوتا ہے: یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال والے اور اے انسانوں کے سردار. من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر چاند چمک اٹھا. لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے بعد آپ بھی بزرگ و برتر ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ جو ہمارے سامنے سایہ فگن ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے اور یہ وہی مہینہ ہے
जिस महीने में नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। ज़माने क़दीम से यह बात मशहूर व मारूफ़ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। लेकिन बाज़ लोगों ने यहाँ पर जो है एक मुहिम चलाया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को नहीं बल्कि 8 या 9 रबीउल अव्वल को हुई है। सच बात तो ये है कि तमाम उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत का इस बात पर इजमा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन जो है पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल ही है। चुनांचे उलमाए कराम की किताबों बातों से उनकी किताबें जो है आज भी मौजूद हैं, उनमें यही लिखा है। चुनांचे मशहूर व मारूफ मुहर्रिख और मुहक्किक इमाम अहमद इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फील रबीउल हज़रत इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई है वो 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन हुई है, जब वाक़े फील पेश आया, जब अबरहा अपने लाओ लश्कर को लेकर खाने काबा को मुनहदिम करने के लिए चला था। उस साल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ़ अपनों ने भी किया, गैरों ने भी किया, दोस्तों ने भी किया, दुश्मनों ने भी किया। चुनांचे एक ईसाई मुअर्रिख और मुहक्किक एक किताब लिखता है जिसमें वो 100 ऐसे शख्सियतों का नाम लिखता है जो दुनिया के अंदर मशहूर हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखता है, जबकि वो एक ईसाई मज़हब का मानने वाला है। होना तो ये चाहिए था कि वो जीसस को मानता है, वो अपने मज़हब के मुक्तदा का पहला नाम लिखता, लेकिन जनाब हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले नंबर पर लिखता है। उसके मानने वाले उससे एतराज़ करते हैं और पूछते हैं कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले नंबर पर क्यों लिखा है। वो मुहक्किक आगे लिखता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले दुनिया की हालत क्या थी आप सब जानते हैं। हर तरफ ज़लालत व गुमराही फैली हुई थी, हर तरफ घटाटोप अंधेरी थी, लोग गुमराही की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा। और जब आप दुनिया के अंदर आए तो वो लिखता है कि आपके दुनिया के अंदर आने के बाद दुनिया के हालात बदल गए। दुनिया के अंदर जो बुराई फैली हुई थी आपकी वजह से बुराई धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया और पूरे दुनिया के अंदर इस्लाम फैला, पूरे दुनिया के अंदर ये दीन फैला, ये शरीयत फैली। अगर ये दीन झूठा होता, अगर ये शरीयत झूठी होती, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे होते तो पूरी दुनिया के अंदर ये दीन नहीं फैलता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये गैरों ने लिखा है। चुनांचे दूसरे नंबर पर एक पंडित है, वो एक किताब लिखता है द हिंदू स्क्रिप्चर्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका उर्दू में तर्जमा है काल की अवतार। इसका मुसन्निफ कोई मुसलमान नहीं है और जब ये किताब शाये हुई तो पूरे दुनिया के अंदर जो है हलचल मच गया, क्योंकि इस किताब के अंदर वो चीज़ें लिखी हुई थी कि लोग जो है देख कर और सुनकर जो है दंग रह गए। अगर इस किताब का मुसन्निफ कोई मुसलमान होता तो आज वो जेल की सलाखों के अंदर होता और अब तक इस किताब के अंदर पाबंदी लग चुकी होती। वो मुअर्रिख इस किताब के अंदर लिखता है। और ये पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय जो एक ब्राह्मण है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है, वह एक संस्कृत स्कॉलर और मुहक्किक है। अपनी तहकीक को उन्होंने 8 ऐसे पंडितों के सामने रखा जिन्होंने जो
हिंदुस्तान के माने जाने और गर्दाने जाने वाले पंडितों में से थे। उन्होंने जब इस तहकीक का मुताला किया, बगौर मुताला किया, तो उन्होंने इस बात का कि शाहिद मुशाहिदा किया और गवाही दिया है कि इस किताब में जो कुछ लिखा है इसके हवाले जात मुस्तनद हैं और इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो तहकीक है, बिल्कुल सही है। पंडित वेद प्रकाश ने लिखा है, जो पहला ये उसका तबसरा है, उन्होंने लिखा है कि काल की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा। और अवतार बोलते हैं काल की अवतार यानी पूरे दुनिया के रहनुमा, ये भगवान का आखिरी अवतार होगा। उन्होंने ये लिखा है कि यह बात सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त होती है। दूसरी तहकीक में उन्होंने लिखा है कि भगवान इस काल की अवतार को एक जजीरे में उतारेगा, एक जजीरे में वो नाजिल होंगे और वो जजीरा अरब का इलाका है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। तीसरे नंबर पर वो अपनी तहकीक में लिखता है कि काल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत होगा और उसकी माँ का नाम सोमानिब होगा। और यह जो संस्कृत का वर्ड है और अरबी ज़बान में इसका मतलब है, विष्णु भगत का मतलब है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, और सोमानिब का मतलब है अमन, जो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है और माँ का नाम जो है आमना है। तीसरे नंबर पर वो लिखता है कि चौथे नंबर पर लिखता है कि वो जो है खजूर, वो काल की अवतार जो है खजूर और जैतून को पसंद करेगा। खजूर और जैतून उसका महबूब ग़िज़ा होगा। चुनांचे आप देखें किताबों को उठाकर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना जो है जैतून और खजूर था। पाँचवें नंबर पर वो लिखता है कि काल की अवतार को लोग आमीन और सादिक के नाम से जानेंगे। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का जब मुताला करते हैं तो पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में अमीन और सादिक के लक़ब से पुकारा गया। छठे नंबर पर वेद प्रकाश उपाध्याय अपनी तहकीक में लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला यानी भगवान काल की अवतार की जो है फरिश्तों से मदद करेगा, फरिश्तों के ज़रिए उनको तालीम देगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिया गारे हिरा के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम देते हैं। सातवें नंबर पर वो लिखता है कि अल्लाह तबारक व तआला काल की अवतार को एक ऐसा सवारी अता करेगा जो उन्हें उस ज़मीन से लेकर सातों आसमान का सफ़र कराएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफ़र कराया और मेराज के सफ़र के लिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सवारी अता किया। आठवें नंबर पर लिखता है कि अल्लाह तबारक व तआला काल की अवतार की बहुत मदद करेगा। चुनांचे आप जंगे बदर को देखें, जंगे बदर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते हैं। किसके ज़रिए से? फरिश्तों के ज़रिए से मदद करते हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, लास्ट में वो लिखता है कि अल्लाह तबारक व तआला काल के अवतार कि जो मदद करेगा और ये दीन जो है पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा। चुनांचे कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा अर्सलनाका लिन्नासि रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वमा अर्सलनाका काफतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको कायनात के लिए डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम और आप ज़रा देखें कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आशिक होने का दावा करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। हम अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, हमें अपने नबी से कितना मोहब्बत है, उनकी सुन्नतों से हमें कितनी मोहब्बत है, उनके लाए हुए दीन से हमें कितनी मोहब्बत है। ज़रा गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम है। अपने नहीं गैर जो है तारीफ़ कर रहे हैं। हमारे उलमा ने, हमारे मुहक्किकीन ने इतनी किताबें लिखी हैं कि लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती बन जाएं, फरमा बरदार बन जाएं, उनकी सुन्नतों को अदा करने वाले बन जाएं, उनके लाए दीन पर अमल करने वाले बन जाएं, उनकी शरीयतों पर अमल करने वाले बन जाएं, ताकि हमें दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी हमें कामयाबी से अल्लाह तबारक व तआला हमकिनार करे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة فقام بالحجة ودعا إلى الحق. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن عبد الله بن عباس وجابر رضي الله عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل من ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول. إخواني في الله، إنني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والاعتصام بحبل الله والتمسك بشريعة الله والعمل بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قامع أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار رضي الله عنهم جميعا، وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما، وعلى أمهما سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المظلومين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.